हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। Today we are living in the country, in the world where we definitely know that there are some countries like India is a country, US is a country, Russia is a country, Sri Lanka is a country, Nepal, Bhutan, all these are the countries. ये आज के कंट्रीज है। इवन इंडिया को भी अगर हम देखेंगे आज से 500 साल पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं करते थे, एक ही किंगडम था। उसी तरह अगर हम आज से और 5, 6, 7 साल पहले जाएंगे तो यूरोप में भी अलग अलग तरह के एम्पायर्स थे। बाद में यूरोपियन एम्पायर बहुत सारे अलग अलग, हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, थोड़े से समय के लिए जर्मन एम्पायर आया। ऐसे एम्पायर्स में से आज नए नए यूरोपियन देश बाहर आए। तो ये सब प्रोसेस कैसे हुआ वही हमको इस चैप्टर से देखना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीज बता दूं, कुछ आइडियाज जो तुम्हारे काम आने वाले। What is some important definitions? Just a minute, my cables are entangled. My laptop is stuck with it. So you're on laptop right now? Yes. What is nation? Nation is a group of people who are tied or united by a certain. Are you sharing the screen, sir? Yes. Let me share. It is not Your visible. screen is not here. Yes. I was supposed to share, but I forgot. So you're on laptop right now? Yes, I'm using my desktop. Wait, what happened? You have asked us now to remind you. Nation. This is the definition of a nation. A group of people who are tied or united by a certain identity. जैसे कि फ्रांस में जाएंगे, we studied during the French Revolution, class 9, last year, I hope you remember. भाषा के आधार पर उन्होंने अपना देश बनाया था। हमारे इंडिया में हमारी कॉमन यूनाइटेड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो हमारी आइडेंटिटी रही है, कॉमन आइडेंटिटी। तो इसलिए when we talk of nation, we do not talk of any kind of political area. We do not talk of political boundaries. We do not talk of geography. When we talk about nation, we talk about a group of people, and within that group, all the group members believe that they are connected to each other by some other identity. It can be language, it can be race, it can be religion, it can be caste, or it could be anything. जैसे कि मैंने अभी कोसोवो और सर्बिया का एग्जांपल बताया आपको। उसका बेसिकल प्रॉब्लम क्या है? सर्बिया के जो लोग हैं वो सर्बियन रेस के हैं। कोसोवो के जो लोग हैं, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, इसको मैं बाद में हटा दूंगा। Where it is? Suppose this is Serbia. ये सर्बिया कंट्री है, and this is, ये पूरे सर्बिया कंट्री में ये जो लोग हैं ये है सर्ब्स, और ये है अल्बानियंस। यहाँ पे अल्बानियंस रहते हैं, ये सर्ब्स, इनकी रेस अलग अलग है। तो सर्ब्स मानते हैं कि ये पूरा कंट्री उन्हीं का है, अल्बानियंस मानते नहीं, इतना कंट्री अल्बानियंस का है और वो कोसोवो है। तो इनके बीच में यही स्ट्रगल चल रहा है। Sir, I have a question So on the definition of the nation. The definition, is there any doubt about nation? सबको समझ गया नेशन क्या होता है? We all Indians, those who live in India, Sir, I have a doesn't doubt matter on whether we speak Marathi or Gujarati or Bengali or Telugu or whichever language you speak, or whichever caste we belong, whichever religion we follow, that doesn't matter. What matters? We are the residents of a land which we know India, and our ancestors unitedly struggled against the British people to get a land free from their clutches. And 1947, we got the success. And so we decided to live together as an Indians. So
our common struggle against the exploitators, against the colonizers is a basis of our nation. Clear this? अब हम देखेंगे definition of a state. Still, if you want to ask any question about nation, you can ask. So, but there are certain countries in the world whose lands are not connected, as we can say in earlier times. West Pakistan was there, and East Pakistan. At today's date, West Bank of Philistine and Gaza Patti, these two are not connected. तो उसको देश कैसे बोलेंगे? For example, suppose we'll just take imagination. थोड़ी सी imagination हम use करेंगे यहाँ पे. Suppose this is West Pakistan, presently Pakistan, और पहले यहाँ पे था size, don't worry about the size, East Pakistan. जब हम आजाद हुए तो दोनों एक ही कंट्री थे और इस पूरे कंट्री को कहा जाता था पाकिस्तान. उसके दो पार्ट थे, वेस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश. यहाँ पे मोस्टली पीपल उर्दू बोलते थे और यहाँ के लोग बंगला बोलते थे. बंगाली और बांग्ला बोलते थे. रिलीजन एक ही था उनका. रिलीजन के आधार पे इंडिया से सेपरेट हुए वो, लेकिन रिलीजन के आधार पे वो कनेक्टेड नहीं रह पाए. इनके लिए लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. ये भी लोग इनको इंफीरियर मानते थे और ज्यादातर गवर्नमेंटल पावर्स इनके हाथ में थी. सो दिस पीपल प्रोटेस्टेड and got separated from West Pakistan and made their own country, Bangladesh. See, religion से इनमें commonness नहीं आई थी. यहाँ पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, पर यहाँ पे हम सिर्फ लैंग्वेज का बात करेंगे. आज पाकिस्तान अलग देश है, बांग्लादेश अलग देश है, लेकिन जब इंडिया से फ्री हुए थे, टूट के निकले थे इंडिया से, तब ये एक कंट्री था, लेकिन एक रह नहीं पाए बिकॉज उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, फीलिंग ऑफ वननेस नहीं थी. यहाँ के लोगों में अपनी सेपरेट आइडेंटिटी थी बंगाली, यहाँ के लोगों में अपनी सेपरेट आइडेंटिटी और सुपीरियरिटी थी उर्दू सोच. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेंगे, ये गाजा स्ट्रिप है सपोज, और ये जो थोड़ा बड़ा टुकड़े में बना हुआ फिलिस्तीन जो बचा हुआ है वो, अगर इसका एग्जांपल ले लें, these people connect with these people and these people connect with this people and there is a country called Israel. यहाँ पे कहीं इजराइल आता है. ज्योग्राफी अलग है. यहाँ के लोगों की अपनी एक अलग तरह की गवर्नमेंट है, यहाँ के लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, बट द पीपल आर कनेक्टेड. तो ये दो अलग अलग देशों में रहते हैं, ये लोग और ये लोग, बट दे आर वन नेशन, बट दे आर नॉट वन स्टेट. वो एक स्टेट नहीं है, वो एक नेशन जरूर है लेकिन एक स्टेट नहीं है. ये भी पाकिस्तान, यहाँ पे एक वेस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये एक स्टेट था लेकिन ये दो नेशंस थे बिकॉज लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे थे. अगर मैं तुम्हें स्टेट की डेफिनेशन बता दूं तो तुमको आगे और समझ में आएगा. Wait for me to finish the definition of state also. What is state? State. Geographical area ruled or governed by a certain government or a king. Now understand the difference. नेशन एक अलग कंसेप्ट है, स्टेट एक अलग कंसेप्ट है. अब इन दोनों को जोड़ा भी जा सकता है, नेशन स्टेट, जो हम इस चैप्टर में देखने वाले क्या होता है और कैसे होता है. बट बिफोर विल मूव फॉरवर्ड, ये दोनों डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. रीड दिस एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव. इनके बारे में कुछ भी तो पूछो, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना. एक नेशन के अंडर का पार्ट है जैसे महाराष्ट्र ये वो, और इट्स एन इंडिपेंडेंट एरिया. नेशन का ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है. नेशन सिर्फ एक फीलिंग होती है जो कुछ लोगों में होती है, जो उनको एक बनाती है. एक अपने आप को एक नेशन मानने वाले लोग 2, 4, 6, 8, 10 कंट्रीज में भी डिवाइडेड हो सकते हैं. या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि एक राजा ने किसी बड़े से एरिया को जीत लिया और उस राजा के किंगडम में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सारे भाषा अलग अलग भाषा के जो लोग बोलते हैं वो अपने आप को एक फील नहीं करते, वो अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते हैं.
लेकिन उनके पास अम्ब्रेला गवर्नमेंट तो एक ही है, राजा की है, तो वो एक स्टेट जरूर है लेकिन एक नेशन नहीं है। समझा? हाँ सर, यस सर। थोड़ा सा और मैं इसमें जो मुझे अभी बताना नहीं था लेकिन मैं अभी बता देता हूँ तुम लोगों को, बाद में डिटेल में और जाएंगे। सबसे बड़ा कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट जो हमारा है नेशन स्टेट, ये मैं बाद में बताने वाला था लेकिन अभी बता रहा हूँ। व्हाट इज नेशन स्टेट? नेशन स्टेट, इट इज अ area ruled by a government that people feel that they are जहां दोनों चीजें मैच हो रही है वहां बनेगा नेशन स्टेट। अब थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ? एंड इंडिया, वी कैन कॉल इंडिया इज अ नेशन स्टेट। तो एक और थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, मतलब छोटा कर देता हूँ ताकि जगह ज्यादा मिले। Are you still able to read what is written on the screen? Sir, yes, I'm listening. according to the definition, sir, according to definition, a group of people who are tied or united by a certain identity is said as nation or state. So sir, but if we see to world, mostly एक country या state उसी को माना जाता है जिस जो accepted है बाकी states या countries से। So how this difference is ये applicable? पॉलिटिकल चीजें फिर आगे और बढ़ती जाएगी। पहले हमको बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर मैंने तुमको सिर्फ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया तो उसके आधार पर मुझसे और ज्यादा डिटेल में जाओगे तो समय लगेगा, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। हमको अगर ये चीज समझनी है तो सबसे पहले हमको बेसिक समझना पड़ेगा, और अभी हम बेसिक्स पे है। ये क्वेश्चन इज वेरी, लेकिन लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। सडनली 2-4 सीढ़ियां जंप करके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, इससे गिरने का खतरा रहेगा, कंफ्यूजन आने का चांसेस है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो अब हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज यहाँ पे हमने देखी है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक लेंगे, अच्छा ओके, we take country 1, country 2 and country 3। इसमें हम 3 पर्सपेक्टिव्स देखेंगे क्या होते हैं। तुमको ये ऊपर की चीज नेशन स्टेट का आइडिया समझने में और हेल्प आ जाएगी। मे बी इट कैन बी रैंडमली एनी कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है। ये दूसरा, अच्छा ये पहले कंट्री का सिचुएशन क्या है? There's a lot of noise around me that irritating। ओके, ये एक कंट्री ऐसा है जहाँ पे one king and many language speakers। एक राजा है जो पूरे कंट्री को एडमिनिस्टर कर रहा है, और वो बहुत ताकतवर राजा है। इस केस में कुछ फ्रेंच स्पीकर्स भी आ गए, कुछ इटालियंस भी आ गए, कुछ ब्रिटिश भी आ गए, कुछ स्पेनिश भी आ गए, कुछ जर्मन भी आ गए, और ऑलमोस्ट ज्यादातर यूरोप की भाषा बोलने वाले लोग इस राजा के कंट्रोल में है। लेकिन ये जो भाषा बोलने वाले लोग हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं करते। ये लोग एक दूसरे खुद को दूसरों से अलग मानते हैं, तो हम इसको एक स्टेट मानेंगे। इज इट अ स्टेट? Yes, it is a Yes. state. Is it a nation? Yes. No, it is not a nation. No, it's not. It is a kingdom. A state है, मतलब kingdom। अब दूसरा सिनेरियो यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे ये सब के सब लोग, all the people here who live here speak फ्रेंच लैंग्वेज। एग्जाम्पल है, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये पूरे के पूरे देश इतने एरिया में रहने वाले लोग फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग किंग रूल करता है, सोवरीन किंग, किंग 1, किंग 2, किंग 3 and king 4। but all the people speak same language, but their kings keep fighting। राजा की आपस में लड़ाई होती रहती है, ये अपना एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करते रहते हैं। इन राजा में हमेशा लड़ाई होती रहती है, लेकिन सारी की सारी जनता
मतलब 4 किंगडम में रहने वाली जनता एक ही भाषा बोलती है। यहाँ पे रहने वाला फ्रेंच, तो यहाँ पे रहने वाले फ्रेंच से बिल्कुल सिंपैथी है, उनको आपस में एक दूसरे से सिंपैथी, सारे फ्रेंच स्पीकर्स को आपस में एक दूसरे से सिंपैथी है। सो वुड वी कॉल इट वन स्टेट? Is it one state? No, this is not a state. These are actually four states. These are actually four states. Is it a nation? Yes. Yes. Can we call it a French nation? Yes. Yeah. Yes, it is a French nation. अब दूसरा, last, third example. Suppose यहाँ पे एक इंग्लिश बोलने वाली जनता थी, यहाँ पे आयरिश बोलने वाली जनता थी, और इतना फ्रेंच बोलने वाली जनता थी, और जो भी रफली इसको जर्मन समझ लेते हैं, ये एक जनता थी। लेकिन यहाँ पे एक जर्मन में से एक अलग सा राजा खड़ा हुआ, उसने सारे जर्मन बोलने वाले को एक कंट्री बना दिया और नाम दे दिया उसका जर्मनी। और ये जर्मन, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर, ठीक है, ये वाला एरिया उसने बना दिया जर्मनी टोटल। इसको निगलेक्ट करो, थोड़ा सा बाहर चले गए, ये पूरा जर्मनी एरिया, अलग सिंगल किंग, सारे जर्मन पीपल। दूसरा एरिया हम अलग लेंगे, यहाँ पे अलग किंग, यहाँ पे आ गया फ्रेंच किंग इतने एरिया में, ये इंग्लैंड इनका अलग किंग आ गया, और ये आयरलैंड का अलग किंग आ गया। मतलब अब इस एरिया में 1 2 3 4 किंग है, और सारी जनता अपने अपनी, मतलब जनता जो भाषा बोलती है, राजा भी वही भाषा बोलता है। जनता राजा बिल्कुल एक जैसे लाइफ जीते हैं, भाषा बोलते हैं, और चारों राजा एक दूसरे से अलग है। सो वुड यू कॉल देम अ नेशन स्टेट्स? No. नहीं, ये अलग, दिस इज वन नेशन स्टेट, जर्मन नेशन स्टेट, दिस इज फ्रेंच नेशन स्टेट, दिस इज इंग्लिश नेशन स्टेट, एंड दिस इज आयरिश नेशन स्टेट। ऐसे 4 Yes. स्टेट, 4 नेशन स्टेट बोल सकते हैं उनको। Yes. Yes. 4 nation states. State. Got the concept of nation states? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. I still expect there may be some, maybe having some more doubt. Feel free. देखो, it's your responsibility. Do not let me go ahead if you have any doubt. अगर तुमको डाउट रहा और मैं आगे बढ़ गया, I wouldn't be having any problem. You would be having problems. So do not compromise with the understanding. You are there. You are here to understand. So कुछ भी डाउट है मुझे फिर पूछो. Frankly बोल रहा हूँ. Yes, Deep. Sir, on the basis of the language also we can say that the nation is different and state is different. Can you please explain your question again? May I speak in Hindi? Okay, speak. अगर सर किसी जैसे इंडिया में हम साउथ में जाएंगे तो अलग लैंग्वेज है उनकी, नॉर्थ की अलग लैंग्वेज है, वेस्टर्न इंडिया की अलग लैंग्वेज है, तो उसके भी आधार पर हम मतलब इंडिया भी एक नेशन स्टेट हो रहा है, सिर्फ एक गवर्नमेंट उनकी सेम है, पर जो बाकी के स्टेट है इंडिया के वो अलग अलग लैंग्वेज में है, तो वहां पर नेशन स्टेट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, देखो, every person, whether it is you, me, your parents, my friends, whoever, every person carries multiple identity. मैं तुम्हारी बात करता हूँ. You are a student of Sri Vidya Mandir. Yes, this is your identity. You are son of your parents. That is also your identity. Your religion is also one of your identity. Your caste is also your identity. तुम किसी के दोस्त भी हो सकते, तुम किसी के cousin भी हो, तुम किसी के student भी हो, right? So you have multiple identities. In the same way, you have one more identity, that you are a Marathi speaker. Yes, you are a Marathi speaker. You have another identity. You are the Indian. That's also your identity. The matter is which identity dominates you. According to you, which is the most important identity? So according to you, all the identities that I've just counted, which identity would you keep on the top? As a citizen of India. Citizen of India. So that identity dominates. तो तुमको फर्क नहीं पड़ता तुम चंद्रपुर में रह रहे हो,
टूरिज्म के लिए तुम गुजरात में चले जाओ, तुम्हें कोई व्यक्ति गुजरात में बात करेगा, तुम्हें समझ में आएगी, यू डोंट माइंड इट। कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे हिंदी में या तेलुगु में बात करता है, अगर तुम्हें वो समझती है तो यू वोंट माइंड इट, नो प्रॉब्लम, बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर अस, हम उसको गेट आउट कर लेंगे। ये अब हमारे आजादी के बाद जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे कंट्री को रूल किया, उन्होंने कुछ ऐसे रूल किया कि हमने ये सारी चीजों को निग्लेक्ट कर दी। वी स्टडीड इन द पॉलिटिकल साइंस चैप्टर आल्सो, when we decided to, a government decided to declare Hindi as a national language, some southern states reacted against it, and what was government response? Positive response. Okay, अगर आप नहीं मानते तो हम जिद नहीं करते हिंदी की, हम इंग्लिश कंटिन्यू करेंगे। So this is how we accommodated with the different identities. I hope you got your answer there. Yes, Harsh. So my question is, if a means piece of land which is a state, means वहाँ के जो लोग हैं they accept the government, but the situation is जैसे इजराइल ले लो, the citizens of Israel consider Israel as a country, वो मानते हैं, and they feel it as a nation or a country, whatever it's. But Israel keeps on capturing the place of Palestine. So वो जो area कब्जाया है, the people staying on that area doesn't accept the king. तो उसको nation बोलेंगे कि अब state बोलेंगे? वो स्ट्रगलिंग फेज चलेगा। अब इजराइल इसको बोलेगा हम नेशन स्टेट है, लेकिन अगर वहां के लोग इस बात को एक्सेप्ट, जैसे रियलिटी में केस है, इजराइल में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर द ज्यूज, बट स्टिल देयर आर सम अरब्स एज वेल इन इजराइल who have no problem with the government. Do you know this? Yes, there are mostly of West Bank. जिस दिन इजराइल अपने अरब सिटीजन्स को ये फील करवा देगा यू आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ अ कंट्री, उस दिन वो फुल्ली डिक्लेयर कर देगा कि हम नेशन स्टेट है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो इजराइल तो अपने आप को नेशन स्टेट बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ लोग उसको नहीं मानेंगे। तो ये एक तरह का डिस्प्यूट चल रहा है, तुम्हें साइड लेनी पड़ेगी, तुम किसका साइड लेना चाहते हो। जैसे कि मैंने सर्बिया और कोसोवो के एग्जांपल में बताया, रशिया ने साफ साफ सर्बिया के साथ चला गया है, यूएसए साफ साफ कोसोवो के साथ आ चुका है। आदर्श, यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Sir, on which basis India is a nation? India is a nation. See, Britishers ruled India, started ruling India much early. उनके पहले कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए, पर अरब और मुस्लिम इन्वेडर्स में बेसिक डिफरेंस था। जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए वो कहीं से तो भी निकले हुए थे, कहीं से निकाला गया था उन्हें, तो वो इंडिया में आके सेटल हो गए। अब वो कहाँ से निकाले गए थे वो अपने अपने हिस्ट्री है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इंडिया में आके सेटल हो गए। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो वो इंडिया में सेटल नहीं हुए, उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज लेके चल गए और इंडियंस को काफी ट्रबल किए। जितने भी इंडियंस थे जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो देयर वाज नो वन किंगडम। अंग्रेजों ने कई सारे राजाओं को हराया, बंगाल में अलग किंगडम था, दिल्ली में अलग किंगडम था, महाराष्ट्र में मराठाओं का अलग था, साउथ में टिपू सुल्तान के अलग किंगडम, अंग्रेजों ने पंजाब में राजा रंजीत सिंह का अलग किंगडम था। सबको अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके से जीता। अंग्रेजों ने एक देश नहीं जीता, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जीते और उन सबको एक्सप्लॉइट किया। फिर सारे अलग अलग किंगडम्स की जनता ने इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ा, एक्सप्लॉइटेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ा, लंबी लड़ाई चली है। सबसे पहला एक्सप्रेशन इस लड़ाई का आया था 1857 में, तुमको याद होगा 1850 रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पहला एक्सप्रेशन था। उससे पहले भी लोग लड़ रहे थे और आगे चलते चलते ये लड़ाई कंप्लीट हुई 1947 में। ठीक है, तो हमने मिल के, सब लोगों ने मिल के लड़ा और हमको एक्सप्लॉइट करने वाले को किक आउट कर दिया कंट्री से। अब क्या करेंगे हम? क्या जितने सारे पुराने किंगडम थे वैसे दोबारा कई सारे छोटे छोटे देश बना लेंगे या फिर अपने आप को एक देश बनाएंगे? यहाँ पे सरदार पटेल, नेहरू और बाकी जैसे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय जो पहले पावर में आई, और उसके अलावा बाकी दूसरी भी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज थी, सब मिलकर साथ में आए और उन्होंने डिसाइड किया वी विल मेक इंडिया वन कंट्री। तो मोस्टली हम ऐसे मानना चाहिए, even personally I too believe that India is also nation state and our feeling of oneness depends on common united struggle against the common exploitator। जिसने हमें शोषण किया, जिसने हमारा, ऐसे शोषित शक्ति के विरुद्ध हम लड़े, वो लड़ाई में जो हमें एकता पैदा हुई, वो एकता हमारा बेस है नेशनलिज्म का। I hope you got your answer. Sir, but like in the example country 2 is French speaking country or French nation. Which nation India is categorized in that basis? See, oneness, people have the feeling of oneness। वो oneness की फीलिंग किसी भी बेसिस पे आ सकती है। इट कुड बी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, वो
यूरोप में मोस्टली वो भाषा के आधार पे हुई, हमारे इंडिया में वो एक कॉमन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पे हुई, कहीं धर्म के आधार पे हो सकती है, कहीं जाति के आधार पे भी हो सकती है। तो हमारे देश में, जैसे मैंने दीप को आंसर देते समय कहा था, कि हमारे लिए बहुत सारे मैक्सिमम इंडियंस के लिए आज भी कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है, रिलीजन को हम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। रिलीजन हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम हमारे पब्लिक लाइफ में नहीं देते हैं। हमारे फ्रेंड्स सभी कम्युनिटीज के लोग होते हैं, हम सभी के साथ रिलेशन रखते हैं, सभी के मैरिजेस, बर्थडेज, डेथ, फंक्शंस अटेंड करते हैं, फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं। तो रिलीजन भी हमारे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन स्टेट आइडेंटिटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जिस दिन हो सकता है भारत में कुछ लोग रिलीजन को एसोसिएट करना चालू करेंगे, हो सकता है खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन इंडिया की और अलग अलग नेशन बन जाए, हिंदू नेशन, मुस्लिम नेशन, क्रिश्चियन नेशन, बुद्धिस्ट नेशन, जैन नेशन, ये खतरा हो सकता है अगर हमने धर्म को हमारा बेसिस ऑफ नेशनलिज्म बना लिया तो। आई होप यू गॉट योर आंसर। Sir, can a nation be monarchy or democratic? It could be anything. We are not talking about the forms of government. We're talking the state and the nations. Forms of government, अगर एक बार नेशन स्टेट बन गया या स्टेट बन गया तो उसमें गवर्नमेंट तो कुछ भी हो सकती है। एक नेशन स्टेट डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है, डिक्टेटोरियल भी हो सकता है, मोनार्की भी हो सकता है, ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, ओलिगार्ची, कुछ भी हो सकता है। Sir, like Autocratic Pakistan means and East वो Pakistan. कौन बोल रहा है? Who's speaking? Adarsh sir, हाँ आदर्श बोलो। like in the West Pakistan and East Pakistan, हाँ। West Pakistan people thinking East Pakistan people inferior. In India there are multi languages. In हाँ। in Bihar there is Bhojpuri. In Maharashtra there is Marathi. Why there is no feeling of inferiorness or superiorness here? This is something we should be happy about, ना? We But Indians do sir, not. but the topic is same. अच्छा, one more thing. There is a scene in I think Munna Bhai MBBS some version. One person goes to hotel and calls waiter. उसको सीटी बजा के चूचू इशारे करके बुलाता है वेटर को। एक इंसल्टिंग तरीका रहता है वेटर को बुलाने का, जैसे कि आप अपने आप को बहुत तोप समझ रहे हो और वेटर को बहुत छोटी नजरों से देख रहे हो। आप उसको नौकर समझ के बुला रहे हो और ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, लेकिन वेटर कुछ नहीं करेगा, वो तो आपको आपका ऑर्डर ला के दे देगा। दूसरा पर्सन होटल में जाता है, वो बोलता है वेटर को हाथ दिखाता है, भाई साहब प्लीज, भाई साहब बोलता है प्लीज, बोलता है, फिर वेटर दिखाता है, फिर बोलता है आप बताओगे आपके मेन्यू में क्या क्या है। इस तरीके से बात करता है। तो दोनों में से सही कौन? दोनों सही है एक्चुअली देखा जाए तो। दोनों कस्टमर है, खाने के लिए आए, वेटर को बुलाओ और अपना खाना खा लो। लेकिन एक का कैरेक्टर है कि दूसरे को इंफीरियर समझता है, वो उसके वैल्यूज की कमी है। दूसरा वेटर को भी रिस्पेक्टफुली बुलाता है, वो उसके अच्छे वैल्यूज, अच्छे संस्कार। अब वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लुक डाउन अपॉन किया, मतलब उनको गिरी नजरों से देखा। तो इससे समझ में आता वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का कैरेक्टर। और इंडिया में अगर ये वीडियो यूट्यूब पे चला गया तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिविजुअली कुछ बुरा मना मारे इसका, लेकिन अगर इंडिया में हम किसी को भी इंफीरियर नहीं समझते, हम समझते सारे इंडियंस एक जैसे, हम सब ऑल आर इक्वल। सो दैट शोज आवर कैरेक्टर। अगर मैं किसी को छोटा समझता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि अगला वाला पर्सन छोटा है, इसका ये मतलब हो सकता है अगला सही में छोटा हो, पर एक तो डेफिनेटली कि आई एम लो इन माय थिंकिंग, दैट इज फॉर श्योर। गॉट इट? Sir, and sir, the same thing is in East Pakistan and West Pakistan also. There is a same exploiter, there is a same struggle. सेम एक्सप्लॉइटर सेम स्ट्रगल। कौन एक्सप्लॉइट कर रहा था, कौन स्ट्रगल कर रहा था? ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे थे और तो ये लोग उनको स्ट्रगल तो कर हमने रहे किसी थे। से भगाया ना, हमने उनको भगाने के बाद ही हमारा पार्टीशन हुआ। तो फिर सर, तो उनमें भी तो जैसे हमारे अंदर पीस की वो है, फीलिंग है, उनके अंदर भी रहनी चाहिए सेम इन्वेडर से। इसके बारे में कोई सोशियोलॉजिकल रिसर्च करना पड़ेगा, अभी हम वो रिसर्च नहीं कर सकते। कोई कैसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों, मुझे क्या पता मैं ऐसा क्यों हूँ। चलो आगे बढ़ते। तो ये तीन चीजें क्लियर हो गई है। जस्ट हैव अ लुक एट द टेक्स्ट बुक। ये एक इमेज है, यू मस्ट रीड दिस इमेज। द डिटेल दी हुई नीचे, ये जरूर पढ़ना। मैं भी तुम्हें भी तो इसके बारे में थोड़ा सा अपनी स्लाइड दिखाता हूँ। Able to see the slides?
Yes. चलो नेशनलिज्म में ये हो तो एक फ्रेडरिक सॉरियो फ्रेंच आर्टिस्ट, एक इन्होंने सीरीज ऑफ पेंटिंग्स बनाई, देख लेते। I couldn't get the image of this person, Frederick Soriot, but he was a famous French painter, artist, and he prepared a series of 4 paintings. 4 पेंटिंग्स इन्होंने बनाई। अब 4 पेंटिंग्स में स्पेशल क्या है कि उसका रेफरेंस हमको हमारे टेक्स्ट बुक में देखना पड़ा। देखो, गवर्नमेंट्स जो भी करती है, जनरली गवर्नमेंट वो जो भी काम करती है वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के रिस्पॉन्स में करती है। देश की जनता जो डिमांड करेगी, देश की जनता जो चाह रही है, वैसे ही सरकारें करती है। और हमने देखा, क्या देखा था, 1889 क्या हुआ था उसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लास्ट ईयर याद है सब? सॉरी नॉट 18, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है सबको? लास्ट ईयर में पढ़े थे। यस सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक डेमोक्रेटिक फ्रांस बन गया था और वहां से एक आग लगी थी, डेमोक्रेसी की आग, जो आगे चल के पूरे यूरोप में फैल गई। तो जनरली उस समय के लोग चाहते थे नेशन स्टेट, हर कोई अपनी तरह के लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन वैसी सरकारें नहीं बनी थी। सरकारें तो बाद में बनेगी। गवर्नमेंट पॉलिटिकल लेवल पे जो भी होता है जनरली वो पब्लिक रिस्पॉन्स के, पब्लिक सेंटिमेंट के रिस्पॉन्स में होता है। अब पब्लिक सेंटिमेंट आ गए थे। अब क्या थे पब्लिक सेंटिमेंट? आपके भी जो सेंटिमेंट रहता है बताते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अपने सेंटिमेंट्स, अपनी फीलिंग्स कौन बता सकता है? आर्टिस्ट बताता है। वो आर्टिस्ट एक गाना लिख सकता है, कंपोज कर सकता है, एक पोएम लिख सकता है, एक पेंटिंग बना सकता है, कोई ड्रामा करके, कोई डांस करके। आर्टिस्ट, दिस इज हाउ आर्टिस्ट एक्सप्रेस द फीलिंग्स। और कुछ इस तरीके से ये ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो फ्रेडरिक सॉरी ये भी एक ऐसा आर्टिस्ट था जो शेयर करता था पब्लिक सेंटिमेंट्स को। तो इसने अपने सेंटिमेंट्स बताने के लिए 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई, जिसको ये हम नाम दे सकते हैं सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। These are the 4 paintings. I used free resources to make these slides, और जो इमेजेस मुझे मिले वो इसी क्वालिटी के इमेजेस मिले। इससे अच्छे क्वालिटी के इमेजेस भी अवेलेबल थे, बट आई हैड टू बाय देम, सो आई डिडंट स्पेंड मनी ऑन बाइंग देम। तो इसमें से हम एक इमेज पे, ये वाली इमेज पे हम ज्यादा फोकस करने वाले। तो रिमेंबर दैट फ्रेडरिक सॉरू पेंटेड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स, जिसमें से एक पेंटिंग को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, एंड दैट इज द फर्स्ट पेंटिंग। दिस इज, ये फर्स्ट पेंटिंग है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। सो व्हाट यू सी इन दिस पेंटिंग, क्या दिखा रही है इस पेंटिंग से, इनको क्या समझ में आ रहा है? नंबर 1, पीपल इन यूरोप, ये सारे यूरोपियन पीपल है। You can see the long train of people of all ages, men and women. जहां तक आपकी नजर जा रही है, यूरोप की जनता एक लंबी रैली बनाते हुए, एक लंबी ट्रेन बनाते हुए आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और क्या कर रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने यहाँ पे उनको अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ट्रिब्यूट मतलब क्या बोलेंगे? अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां से आई? अगेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। It will be easy for you to remember that during the French Revolution हमने कुछ सिंबोलिज्म की बात पढ़ी थी। I hope you remember, जैसे कि ये ब्लू व्हाइट रेड पर्सनिफिकेशन ऑफ कलर फ्रांस। फ्रांस के नेशनल फ्लैग में जो 3 कलर होते हैं, ब्लू व्हाइट रेड, ये यहाँ से लिया हुआ है। दिस अगेन द विंगेड वुमेन, पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ। ये सिंबोलिज्म, ब्रोकन चेन, ये सब सिंबोलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए थे। फ्रांस के लोगों ने अलग अलग सिंबल्स बनाना शुरू कर दिए थे, उसी में से एक सबसे फेमस सिंबल था ये। बाद में फ्रेडरिक सॉरू ने इस सिंबलिज्म में थोड़े से और मॉडिफिकेशन किया और उस इमेज में इसको डाल दिया। सो आर्टिस्ट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। आजादी, स्वतंत्रता, लिबर्टी को उन्होंने एज अ फीमेल फिगर पोर्ट्रे किया। और यही फीमेल फिगर इसमें
तो क्या है इस फिगर के हाथ में? सबसे पहले यहाँ पे देखना, टॉर्च, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटन मतलब ज्ञान, नॉलेज, डेवलपमेंट, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस समय एक पीरियड था, पीरियड ऑफ रेनेसा। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण का पीरियड, जिसमें पीरियड में बड़े बड़े ऑथर्स आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, एस्ट्रोलॉजिस्ट आए। इन लोगों ने नॉलेज में बहुत कुछ ऐड किया अपने दिमाग से, बड़े बड़े साइंटिस्ट। तो दैट इज द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। तो दिस मिडल एज ऑल्सो स्पीक्स ऑफ मोर नॉलेज। हम किसी की आंख बंद करके किसी की गुलामी नहीं करेंगे, कोई राजा जैसा बोलता है वैसा नहीं करेंगे। राजाओं की जो थ्योरी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क, ये सारी चीजों को नहीं मानना है हमको, नॉलेज इस्तेमाल करना है। एक हाथ में टॉर्च, दूसरे हाथ में था उनके चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, पुरुषों के अधिकार का चार्टर। अब वुमेन क्यों नहीं था? दैट टू वी स्टडीड लास्ट ईयर, राइट्स ऑफ मैन, सिटीजन ऑफ मैन, एंड देन वुमेन का अलग किसी ने बनाया था, वो इशू हम बाद में डिस्कस करेंगे या फिर कर चुके हैं पहले। तो चार्टर, चार्टर मतलब a document that contains the human rights or men's right to be more precise. तीसरा here, third thing you can see, remains, broken parts of the symbols of absolutist institution. Absolute means uncontrolled. एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक राजा जिसके हाथ में सारी की सारी पावर जिसके हाथ में है, that is absolute monarch. The monarch to whom no one can control. That is absolute monarch. तानाशाही, तानाशाही राजा जिसको बोलेंगे, वो तानाशाही मोनार्की के भग्नावशेष, the broken remains of the uncontrolled monarchy or uncontrolled institution, उसके सामने ये दिखे हुए हैं। देखो, फ्रेडरिक सोरू was also one of the resident of Europe. वो भी यूरोप में रहने वाला एक आम नागरिक था। उसके भी एस्पिरेशंस यूरोप को लेके वैसे ही थे जैसे कि आम जनता के थे, लेकिन क्योंकि उसे पेंटिंग करना आता था, बहुत अच्छा पेंटर था, आर्टिस्ट था वो, तो उसने आर्ट के थ्रू जनता की भावनाओं को एक्सप्रेस किया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इमेज, फिगर 1 ऑफ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स पेंटेड बाय फ्रेडरिक सोरू। उसके बाद और क्या क्या है इसमें? ओके, व्हाट वाज हिज बिलीफ? इसकी बिलीफ क्या थी फ्रेडरिक सोरू की? दिस बिलीफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, मतलब भगवान ने, गॉड ने लोगों को डिस्टिंक्ट नेशन में बांट के रखा है, और हर लोगों के पास अपनी आइडेंटिटी होती है, जैसे कि थ्रू देयर फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। लेकिन राजा जो है, राजा ने एक दूसरे एरिया पे कब्जा कर लिए और दूसरे अपना पावर बढ़ाने के लिए दूसरे नेशंस पे अटैक कर दिए, और इससे पूरी कंटामिनेशन हो गया नेशंस का। हमको वापस वैसे ही नेशन बनाने हैं जो गॉड ने एज्यूम किए। देखो, प्रीवियस में यहाँ पे आपको ये चीज देखने मिलेगी, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, जीसस क्राइस्ट है। तुमको आगे मैं बताऊंगा इस इमेज के बारे में, रिलीजियस एस्पेक्ट बताऊंगा इस इमेज का। बिलीव दैट द गॉड बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड नेशंस, created people and grouped them into nations. See here, fraternity is written. This is Jesus Christ. These are some other angels. It means the entire heaven is looking upon this trail and blessing them. Even the gods also expect this unity of nation state. लोग अपना अपना देश बना के अलग अलग रहे। So what we see here, exact difficult to spot here now. USA and Switzerland already crossed the Statue of Liberty. इसका मतलब USA Switzerland already nation बन चुके थे। हाँ, वो सच में बन चुके थे, because US 1779 somewhere अंग्रेजों से आजाद हो चुका था। फ्रांस रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर जस्ट रीच द स्टैचू, फ्रेंच कलर जस्ट स्टैचू के नजदीक पहुंचा था, और उनके पीछे पीछे जर्मन्स भी थे। अभी जर्मन पीछे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का रेफरेंस इसी चैप्टर में आगे आने वाला है, वहां पर चल जाएगा। नाउ सम अदर एस्पेक्ट ऑफ द इमेज। जर्मन के पीछे पीछे मेमोराइजेशन ऑफ द नेशंस। जर्मनी के पीछे पीछे कौन था? जर्मनी के पीछे यूएसए आगे निकल चुका था, फ्रांस स्टैचू के सामने है, उसके पीछे आ रहा ऑस्ट्रिया, रिमेंबर नॉट ऑस्ट्रेलिया, it is not Australia, it's Austria. Kingdom of Two Sicilies, ये है Kingdom of Two Sicilies, यहाँ पड़ते हैं। Lombardy,
लोम्बार्डी समवेयर, यहाँ कहीं तो भी लोम्बार्डी आता है इतने एरिया में। पोलैंड, पोलैंड तुमको पता ही होगा, तो भी पोलैंड यहाँ कहीं आना चाहिए, अभी दिखाई नहीं रहा। इंग्लैंड, दिस इज इंग्लैंड, डिस्प्रपोर्शनेट मैप। आयरलैंड, इसको बोलेंगे आयरलैंड, दिस इज ऑल्सो आयरलैंड, ये तो इंग्लैंड का पार्ट है सर, ये आयरलैंड। हंगेरी, अगेन समवेयर यही कहीं ऑस्ट्रियन एम्पायर में। रशिया, ये लो रशिया वेयर इट इज। ये सारे स्टेट लाइन में यहाँ पे जा रहे हैं। हाँ ओके, I thought I forgot. From the heavens above, the Christ, saints and angels gaze upon the scene, and it symbolizes the fraternity among nations of the world. दुनिया के सारे देश के लोग, सारे दुनिया के लोग आपस में, they are like their brothers and sisters. Like, but brothers and sisters like cousins. You should live in your own house with your own family members. All cannot live in one house. You live in your respective houses, but be friendly with each other. That is what Sorry was asking people to believe in. ये हमारी final एक बार faces को देख लो. If you want to ask anything regarding this image, you can ask. Otherwise, we'll move on. Still have 15 minutes. Is there any doubt? Whatever you studied so far, do you want to ask any question regarding it? No. चलो कुछ अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक, इमेज तो तुम घर में भी पढ़ के समझ जाओगे, यहाँ से चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बट बिफोर दैट आई विल शो यू this page we have covered. Now we are in this paragraph, and I believe that this paragraph is very important, the most important in this section. तो क्या क्या पढ़ना है आपको इस पैराग्राफ में? This chapter deal with many of the issues visualized by Sauri in figure 1. तो पूरे चैप्टर में जो आगे हमारा आने वाला है, जितने भी इश्यूज यहाँ पे सॉरी ने उठाए, वो सारे इश्यूज को हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। So for example, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and the mental world of Europe. पूरे 19th century में, 1800 में, after the fall of Napoleon, पूरे यूरोप में जो जो इवेंट हुए, यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, दुनिया भर में, यूरोप में जो जो हुए, कुछ ऐसे इवेंट हुए उन्होंने यूरोप की पूरी शक्ल ही बदल डाली। ना सिर्फ शक्ल बदल डाली, even the brain and heart of Europe was also changed. Not only people, the governments changed, their thinking process changed, their lifestyle of the Europeans changed. तो 18th century में ऐसा क्या हुआ कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ साथ लोगों की वे ऑफ थिंकिंग भी बदल गई, सोचने तरीके का सिस्टम भी बदल चुके। द एंड रिजल्ट, अब जो भी चेंजेस आए 18th सेंचुरी में, जो भी चेंजेस आए, सबका एंड रिजल्ट आया इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। जो भी हुआ होगा हम सब देखने वाले, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एट द एंड क्या निकला उसका रिजल्ट? पूरा यूरोप नेशन स्टेट बन गया। और बाद में जब यूरोप नेशन स्टेट बन गया तो दुनिया के बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी नेशन स्टेट इमर्ज होने लगे, हो गए। अब आज हम देखते हैं मैक्सिमम वर्ल्ड इज अ नेशन स्टेट। अरे नेशन स्टेट ने किसको रिप्लेस किया? मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर समझ गए होंगे इसका मतलब? एक राजा था जो कई नेशंस पे रूल करता था। नेशंस मतलब फीलिंग ऑफ पीपल अगेन। अब वो चले गए थे। अभी जो मॉडर्न स्टेट है, जिसको हम नेशन स्टेट बोलते हैं, whether you call it a nation state or you call it a modern state, दोनों बिल्कुल synonymous equal. Now a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. अभी मॉडर्न स्टेट क्या होते थे? ये थे जिसमें एक राजा था जो कि सोवरीन था, जो पूरे देश पे कंट्रोल करता था। ये मॉडर्न स्टेट, काइंड ऑफ अ स्टेट। और ये जो फीलिंग आई थी अपना खुद का स्टेट बनाना, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, इसको डिकेड्स लगे थे, सेंचुरीज लगे थे लोगों में ये फीलिंग आने के लिए दैट वी वांट टू लिव with our own people, with our own king. The king should be among us. So nation state was one which the majority of its citizens, not only, तो nation state ऐसा देश, ऐसा यूनिट था
जिसमें सारी जनता एक जैसी थी और राजा भी उन्हीं में से एक हुआ करता था, राजा उनसे अलग नहीं रहता था। अब हम देखेंगे इस पे स्लाइड शो सेम चीजों का। Now, during the 19th century, nationalism emerged as a force. The end result was formation of nation state against multinational dynastic empires. ये थे multinational dynastic empires. Bohemian Empire, Slovakia, Great Galicia, East Galicia, sorry, West Galicia, Transylvania, Hungarian, Austrian, all these are empires. हर एक empire में मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन रहती थी, लेकिन बाद में लोगों ने इस सारे डायनेस्टीज को हटाए और अपने अपने एक नेशन स्टेट, ये गूगल मैप उठाया गया है, मे बी प्रेजेंट डे गूगल मैप, ये दुनिया में फिर ऐसी नई दुनिया बनाई गई। और इसके लिए सेंचुरीज की प्रिपरेशन लगी। पहले लोग प्रिपेयर हुए, जनता प्रिपेयर हुई पहले इस चीजों के लिए, और जनता को प्रिपेयर करने में फिलोसोफर्स ने भी रोल प्ले किए। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो का एग्जांपल हम लास्ट ईयर देख चुके। फ्रेडरिक सोरू वाज एन आर्टिस्ट, उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी इमेज देख के भी लोग इंस्पायर हुए। और बाद में ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए कुछ राजा है जिन्होंने अपने अपने नेशन स्टेट बना लिए। व्हाट इज अ मॉडर्न स्टेट? द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न स्टेट हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट तुरंत नहीं आया, इसमें 2, 3, 4, 500 साल भी लगे होंगे। Of course, the first expression was France. The modern state would denote a centralized power. अब modern state का मतलब क्या है? हम यहाँ पे बोलते रहे modern state क्या है? हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए MCQ में, इसमें से which of the following defines the modern state? So this defines the modern state. A centralized power, जैसे एक पावर है, एक जगह से पावर कंट्रोल होती है, वो गवर्नमेंट हो या राजा हो या डिक्टेटर हो, जो भी हो, एक्सरसाइज सोवरेन पावर। वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन सोवरेन पावर एक्सरसाइज करते हैं, मतलब उनके वो किसी दूसरे देश के राजाओं के साथ दूसरे गवर्नमेंट का पावर शेयर नहीं करते। कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, मतलब एक राजा है यार, एक गवर्नमेंट है, उसकी साफ साफ डिफाइंड एरिया, इतना एरिया मेरा, अब उतने एरिया में वही राजा या वही गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, किसी और को कोई राइट नहीं है उस एरिया के बीच में बोलने का। दैट इज मॉडर्न स्टेट। अब जरूरी नहीं कि मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट ही हो, ऑब्वियसली नेशन स्टेट बाद में नेशन स्टेट यहीं से इवॉल्व हुए। नाउ द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट डेवलप्ड इन 18th सेंचुरी। ये डेवलप हुआ 18th सेंचुरी समवेयर, 1700 से 1800 के बीच में कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट डेवलप हुआ। इन नेशन स्टेट मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजंस, नॉट ओनली रूलर्स, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन आइडेंटिटी। नेशन स्टेट में वहां का राजा और वहां की जनता, सब में कॉमन आइडेंटिटी थी। पहले लोगों ने अपने आप को एक दूसरे से कॉमनली आइडेंटिफाई किया, और जिसको उन्होंने अपना रूलर चुना, वो रूलर भी फील करता था मैं इनमें से एक हूँ, और वो जनता भी फील करती थी द किंग वाज वन ऑफ अस। उसी वजह से ये नेशनल आइडेंटिटी डेवलप हुई, और वो लोग अपने ज्योग्राफी भी मान लेते, इतना हमारा ज्योग्राफी है, हाँ इसमें से नो लैंड वुड बी allowed by others to take from us, allowed to others. No one can take our land from us, and we will defend this land. Now this commonness did not exist from the time immemorial. हमेशा से ये commonness नहीं थी, बाद में कुछ 16, 17, 18 century में डेवलप हुई। अब throughout this chapter we will see all these things in detail. थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखना, वहां पे इस वीडियो को देखो। कल से ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और ज्यादा इजी रहेगा। आज से रिलेटेड अगेन एनी डाउट? Not yet, sir. Not yet. Okay. Watch the recording of this video. I think some had problem in login. Sir, tomorrow in school we have to bring economics textbook, no? And those sections where we completed geography, in those sections we'll start with the economics chapter 2, and some other sections will continue with geography. But as soon as the geography chapter is finished, we'll continue with just a minute. Economics.